Hello everyone, welcome back to Eastern Post. This is reporter Agastilago. Today our team is here at RRU Pasigat campus to witness a training program on new criminal laws and prison warfare. This program is being organized in collaboration with the Bureau of Police Research and Development. East Siang DC, SP Police and 5th IRVN Commandant will be joining us for the inauguration of the program, and also several other dignitaries will be joining us through virtual presence. So stay connected with us for the full report. This is a training program which is a novel in nature in collaboration with BPRND, and I want to emphasize that this is just the tip of the iceberg and the future collaborations that we are both the top institution, the renowned institution would like to pursue in our future. The introduction of BNSS and BSA represents a landmark shift in Indian criminal justice system. These reforms aim to modernize legal provisions, ensuring greater efficiency, transparency, and fairness in law enforcement and judicial proceedings. By addressing contemporary challenges in crime prevention, investigation, and evidence management, these laws improve the justice system with a more comprehensive and structured legal framework. You may be aware about the Bureau of Police Research and Development, a nodal agency of the Ministry of Home Affairs. BPRND, in short, has been an important component in the field of correctional administration and prison reforms. Apart from the mandate of identifying and studying the problems affecting the prison administration and to promote advanced research and training in this field, the Bureau has been organizing prison training courses for prison officers every year. It has also developed 2 training modules for sensitization of prison officers on the new criminal laws. BPRND has also circulated 52 prison training manuals for officers of various categories and released a compendium of security equipment used in prisons. This is not just a training program. It is an opportunity for all of us to exchange the knowledge, share the experiences, and develop the strategies that will have a lasting impact on the prison management across the country. At Rashtriya Raksha University, we take a great pride in our role as a leader in the law enforcement education, security studies, correctional trainings. Our vision is to build a
that is not only well versed in the legal field, but also equipped with the necessary skill to uphold justice, security, rehabilitations in the correctional facilities. He, it means male, female, transgender. All three are included. Okay, the word he includes all these three. Yeah, he, it's not only male, it is referring to all the three together in one. And the other one is document. ये document का meaning क्या है, मतलब क्या है? ये meaning is already there in IPC. IPC में भी था. Meaning तो यहाँ पे भी same था, but additional point is given here. And वो addition है ये electronic and digital record. Okay. See the papers, books, documents like bank passbook, yeah, any kind of signature, those things are documents. Everyone understands that. But earlier electronic documents, electronic records को document नहीं बोलता था. But here in this new law, the word document means even electronic records. अभी हम लोग का पासीघाट के अलावा बाकी एरियाज पे क्या आप ऐसे और प्रोग्राम्स करवाएंगे? देखो यहाँ में दिस इज़ ए फर्स्ट टाइम जो RRU का तरह ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड ये तो राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी ही ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उन लोग इसको एक्सटेंशन भी करा सकता है लेकिन नाउ स्पेसिफिकली ये बार में तो यहाँ में है. थैंक यू सर. तो ऐसे ही प्रोग्राम्स क्या हम अपने यंग स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी रखेंगे, लॉ एनफोर्समेंट कोर्स वगैरह? Definitely, I think especially for a police officer and then अभी हमारा judiciary का भी and then also even all administrators to know the new criminal laws. The India is making a new criminal law and they should acquainted with this new law. And this is a very important training program and I think the participants should learn more and acquaintances with themselves with this new law. Thank you sir. आप any message for the viewers or the public? My message to the viewers is that now even I think common publics also should know the new law because we have already abolished the IPC system. So now Bharatiya Nyaya Sanhita सुरक्षा ये हो चुका है and all should acquainted with new law. के बाद से ये जो RRU की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है तो आपको क्या लगता है कि जो पासीघाट के जितने भी निवासी है उनके लिए भी ऐसा एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना चाहिए ताकि जो BNS सबको इसके बारे में पता चले? Definitely, this also should be the common citizen of the Pasighat, not only citizen of Pasighat but even Arunachal, and I think they are planning also. If response are good, they can organize in a better way. So okay, how do you feel about the district administrative showing so much confidence in RRU? Under the guidance of Sri Tai Tagu sir, the DC of East Siang, he has been supportive enough and has given all sorts of assistance and support to groom this campus. He has personally taken care of this campus by providing all the logistical support, every administrative support to grow this campus. थैंक यू सर. तो अभी आप लोग के यहाँ पे जो RRU कैंपस पे स्टूडेंट्स हैं आपके उन लोगों के लिए भी ऐसे लाइक हाउ डू यू इंस्पायर देम, आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? So our students, they already go through these particular subjects in their own semester. Particularly for our new batch, new admission has been started, right? So any students or any participants who wants to pursue their career in national security, internal security, police forces, they can join RRU in our new upcoming batches as well. सर इसके बाद से जैसे कि मैंने रिसर्च से पूछा कि अवेयरनेस कैंपेन के बारे में तो क्या आप लोगों की तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऐसा आप लोग पासीघाट के पब्लिक के लिए कराना चाहते हैं? हम लोग टाइम टू टाइम CSR प्रोजेक्ट्स करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ DC सर. अगर DC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आकर हमें अप्रोच करे और हमें प्रोवाइड दे कि कौन से एरियाज में हमें कराना है तो विल डू इट. वी हैव इनफ कैपेसिटी, इनबिल्ट कैपेसिटी विद अस. Our professionals, our staff, faculties are well trained, well equipped with those knowledge and information. Yeah. सर जैसे हम लोग का अभी ये जो नया क्रिमिनल लॉज एनफोर्स हो रहा है तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑफिशियल्स?
नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो गए हैं स्टेट में, और उसमें जहाँ तक चैलेंजेस की बात आती है तो उसमें सबसे पहले एक ट्रेनिंग का ही कंपोनेंट होता है कि अभी तक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे वो पुराने लॉज के हिसाब से एग्जीक्यूट करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे मैटर्स को, लेकिन नए लॉज में उनको प्रॉपरली ट्रेन करने का एक चैलेंज रहा है। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इक्विप किया है उन्होंने कि अब नए तरीके से डिजिटल एविडेंसेस को हो, और सर्च एंड सीजर्स के जो प्रोसीजर में चेंजेस आए हैं उसमें रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है उसके बारे में तमाम ट्रेनिंग्स कंडक्ट की गई हैं। और जहाँ तक RRU का भी बात है तो वी आर कोलैबोरेटिंग विद देम ऑन वेरियस फ्रंट्स, चाहे वो रोड सेफ्टी हो और इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स हों, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हो, तो RRU के साथ हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा है। और आज ये जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग ये करेक्शनल सिस्टम के लिए है, जो प्रिजन्स में लोग ड्यूटी करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, उनके रिगार्डिंग ये BPRND के साथ ये ट्रेनिंग चलाया जा रहा है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि इससे जो अरुणाचल ही नहीं, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो बेनिफिट उठाएंगे, और इट विल बी ए वेरी गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू। Yes, sir. There are other police substitutions in East Siang district. How do you manage to train them? एज फार एज ट्रेनिंग इज़ कंसर्न्ड, हमारा BPRND के साथ भी बहुत सारे कोर्सेज RRU के सेपरेटली भी चलते हैं, और अभी RRU से भी हम कंटिन्यूस टच में हैं ताकि हम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही जो यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके यहाँ पे भी स्टाफ को ट्रेन करें। नए क्रिमिनल लॉज पे भी फैकल्टी के साथ मिलके हमने 3 दिन का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया था जिसमें हमारे सभी IUs को ट्रेन RRU से किया गया है, और फर्दर भी अब हम इसको आगे ले जाएंगे और ट्रेनिंग्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंडक्ट करेंगे। एक्चुअली मैं रिटायर्ड IG, तो मैं यहाँ का रिसोर्स फैकल्टी हूँ। तो ये नया क्रिमिनल लॉ को लेके तो इसमें प्रिजन वालों को, खास करके ये प्रिजन ऑफिसर्स के लिए है, तो उनको CCTNS का थ्रू CCTNS पुलिस का जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम है उनका थ्रू से उनको पहले ही पता चलेगा कि FIR में कितने लोगों को एक्यूज कौन है, किसको अरेस्ट कर रहे हैं और कोर्ट में कब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो लोग क्योंकि फाइनली जाके तो जेल में ही पहुंचेंगे, वो किस तरह का क्रिमिनल है, पुराना जेल ब्रेकर, रेगुलर जेल ब्रेकर है, टेररिस्ट है, कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है, तो नेचर ऑफ क्राइम तो वो किस तरह का कैदी है, उस हिसाब से उनको कौन सा लॉकअप में रखेंगे, इट विल हेल्प। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक तो क्राइम और क्रिमिनल जो आपका ICJS है, जो इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो उसमें उसका थ्रू से प्रिजन वालों को मतलब एक तो आपका वर्चुअल तो कोर्ट प्रोडक्शन का भी इसमें प्रोविज़न है कि आज के दिन में हम लोग जैसे उधर ईटानगर में भी जूली जेल से उधर यूपिया में ले जाते हैं, और पहाड़ के जहाँ समर में कई बार लैंडस्लाइड रोड ब्लॉक होते हैं, तो कैदी को हमेशा लेके उसमें और गाड़ी फंस जाता है, टेलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो वो बहुत हजार्ड है, बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें रिस्क बहुत है। तो ये सब मतलब वो डिजिटलाइज करने से ये भी बहुत प्रिजन के लिए हेल्पफुल है। तो और एक जाके तो प्रिजन वालों को मतलब अभी न्यू क्रिमिनल लॉ को वो लोग ऐसे अगर जाने तो न्यू क्रिमिनल लॉ भी अभी ये लोग पढ़ रहे हैं। तो आप आज के दिन में हम आए दिन सुनते हैं डिजिटल फ्रॉड, पैसा मतलब उसका अकाउंट से डिडा हो गया, चोरी हो गया, तो ये लाखों की संख्या में डेली इतना ये तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो अभी नया लॉ में इसको डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल एविडेंस को उन्होंने कानून बनाया है, डिजिटल एविडेंस को उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टेटस दिया है, उसका वजह से उनको प्रोसिक्यूट करने में ये हेल्प होगा। तो ये है। और दूसरा जो है चेन स्नैचिंग, जो पहले क्राइम में उसका पिनल सेक्शन के अंदर में जिसका डिफाइन नहीं थे, तो वो आज के दिन में चेन स्नैचिंग यहाँ तो सुनाई नहीं देता है, तो सिटीज़ में तो दिन में कई बार हजारों चेन स्नैचिंग तो होते हैं, तो वो सब भी उसमें आ गए अभी क्राइम में। तो इसको भी अभी तो जैसे अभी गैंग रेप डेली सुन रहे हैं, माइनर गैंग रेप, तो वुमेंस का गैंग रेप और मॉब लिंचिंग, जो नया ट्रेंड सुन रहे हैं, और ये डिजिटल तो पहले नहीं थे,
तो अब नया क्राइम, अब जो ट्रेंड जो नया रूप ले रहा है उसको भी अभी उसका पनिशमेंट को एनहेंस किया है, तो कि वो डिटरेंट हो जाए कि लोग डरे, वो क्राइम ना करे। तो इसलिए नया क्रिमिनल लॉ से और इसका वजह से प्रिजन दोनों को इसमें बहुत फ़ायदा होंगे। तो उस हिसाब से मैं सबों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये पब्लिक में भी जाएं कि उन लोग को अवेयरनेस हो और उसमें ये सबके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू। क्रिमिनल लॉ में और एक बात है, ये प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, हाँ, एविडेंस लॉस ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन का प्रोविजन है, इसके बारे में बताइए। हाँ, क्रिमिनल प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट में ऑलरेडी फंड भी प्रोवाइड किया है सरकार ने। तो मैंने PHQ में भी, मैं तो लास्ट ईयर ही रिटायर हुआ है IG सिक्योरिटी से, तो मेरा IG जो क्राइम है तो रिंगू साहब ये लोग के पास फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसमें विटनेस लोगों का थोड़ा थ्रेट है, कोई माफिया या गैंग का किसी का अगेंस्ट कुछ गवाही देना हो तो उसके लिए तो वो लोग पुलिस खुद मालूम कर लेंगे, या उनका गार्जियन जो भी लिखना है उनको अप्रोच करना है, तो उसमें तो सेफ हाउस में उनको रखने का, खाने पीने का सब कुछ इसमें प्रोविज़न है। तो ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए। So viewers, that was all for today. I hope that you find our videos informative. Stay tuned with us for more such updates. This is reporter Agas Tilago signing off with cameraman Gamun Nokar.